Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yes, I think some people are online now. You can start. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. So in the previous Srimad Bhagavatam class, we studied conversation between Narad and Vyasdev. Today we'll be covering Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, the son of Drona punished. And so today we will be also learning how to make the right choices to please Krishna. And when we please Krishna, all of us are pleased, the whole universe is pleased. So that should be our focus, how to make the right choices. Hare Krishna. So we learn these lessons and some inquiries by Shanaka Rishi. We look at those inquiries as well. Hare Krishna, dear devotees, please join us for Jai Radha Madhav prayers. Hare Krishna, Dwarkanath Hindupur, Asha Ramnath Singh, Kiran Lata, Hare Krishna friends, Barilal Vishwakarma, Bagasaga. Hope everyone is having a great Sunday morning. Hare Krishna, Shatrughan Shah, Anant Shresht, Avneet Sharma. हरी बोल फ्रेंड्स, आप सभी का अभिनंदन है. हेमंत मालपानी, आशीष गुप्ता, मनोज मिश्रा, प्रवीण रॉथ, सिद्धार्थ बैल, संदीप बटुला. हरे कृष्णा. There is a request, can you speak a bit loud please? Sure. Hare Krishna. So, this is better. Yes, and we will be starting with Jai Radha Madhav prayers right now. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari.
Hare Krishna, dear devotees. Yes, please. Hare Krishna, Samiksha Kaple, Hari Bol. Yes, we can take care of the volume. In a while, Vardhari Jain, Ketan Dhanani, Radha Yadav, Siddharth Bahel, Sandeep Putola, Kiran Lata, Ashish Gupta, Hare Krishna, Asha Ramnath Singh, Kiran Lata, बरेलाल विश्वकर्मा, बागा, द्वारकानाथ हिंदूपुर, आप सभी का अभिनंदन है. हरे कृष्णा, शत्रुघ्न शाह, अनंत श्रेष्ठ, अवनीत शर्मा, हरि बोल. देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स. संपत स्वर्णकर, शालू शर्मा, पूजा देवेंद्र रप्पा, धैर्यत्री प्रिया दश, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है फ्रेंड्स. ये भागवतम क्लास. मोहन पांचल, स्वाति कुशाग्र, हरि बोल. संगीता शर्मा, अनीता बाजगाई, तिजियाना, हरि बोल. राम किशन शर्मा, आनंद गौरव, किरण कौशल, हरि बोल. प्रभु जी, we can start the class now. We have a lot of friends who have joined, so please go ahead. Okay. Hare Krishna. Please join prayers together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiryet. Shavatam Swakatha Krishna Punya Shamana Kirtanaha Hridayantasto Hya Bhadrani Vidhunoti Suhasatam Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki. Hare Krishna. Please verify if you can hear us. If anybody can verify if the sound is okay. Hare Yes, Krishna. friends, please comment if you can hear properly. Please let us know. If Prabhuji's volume is okay, please. Jivatattva Prabhu wants to know. Hare Neha Krishna. Taneja, Hare Krishna, Anurag Mishra. Can you check the someone connection indicate also? The if- connector, Yeah, I'm checking no, if the connection other is connector, fine. black and white one. Yeah. Yeah. Press. Kiran Lata says yes, she can hear. Hare Krishna. Thank you very much. So today we will be covering and we will be studying how to make the right choices to please Krishna. Because when we please Krishna, then everyone is pleased, right? And so this lesson we get when we are studying this chapter in Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, the son of Drona punished. Hare Krishna. Hare Krishna. Some friends are joining and they have kindly indicated Renu Yes. Sharma, Kavita Gauri, इन Hare सभी ने Krishna. बताया है ये they can hear you. Swati Kushagra, Ashu Thank Sharma, Kavita Gauri. Hare Krishna friends, आप सभी का अभिनंदन है. And this is the Bhagavatam class. We will learn how to make the right choices in life. Prabhuji, please go ahead. Hare Krishna. Please join us in the recitation of the first verse. Would you be repeating? Hare Krishna. Okay. So Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Verse 1. Shanak Uvacha Shaunak Uvacha Nirgate Narade Sutta Nirgate Narade Sutta Bhagwan Bhadarayanaha Bhagavan Badarayana Shutvam Stadabhipretam Shrutva Vastababhipretam Tata Kimakarod Vibhu. Kim Karod Vibhav. Translation by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Rishi Shaunak asked, O Sutta, the great and transcendently powerful Vyasdev heard everything from Shri Narad Muni. So after Narad's departure, what did Vyasdev do? Purport. This is a very short purport. In this chapter, this clue for describing Srimad Bhagavatam is picked up as Maharaj Parikshit is miraculously saved in the womb of his mother. This was caused by Droni, Ashwathama, right? Droni is son of Dronacharya. Acharya Drona's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjun. Before commencing the great epic Srimad Bhagavatam, Shri Vyasadev realized the whole truth by trance in devotion. Hare Krishna.
please join us for Guru Pranati. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, dear devotees. So today we learn how to make the right choices to please Krishna, because that will please everyone, also our very self. Hare Krishna. So here I'll give you the gist of the chapter, and there are two questions being asked. So we talked about in Srimad Bhagavatam. Question by the sages was the first chapter, how it started, but there are 22 questions asked in the first canto. And in this chapter, question number 11 and 12 are being asked. So question number 12 you already covered in the first verse. That after Devarshi Narad left, what did Vyasadeva do? And the purpose Srila Prabhupada very nicely revealed that how Droni, the son of Dronacharya, his name was Ashwathama. Yes, you know it. So Ashwathama was punished by Arjun, and how he was punished and why he was punished. So we all understand that after the battle at Kurukshetra was over, and Duryodhan, right, was, counting his last breaths after being, defeated by Bhimsen. At that time, जब भीमसेन ने दुर्योधन को मार गिराया, वो वहाँ पे अपना घायल पड़ा हुआ था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उस समय अश्वत्थामा, he came looking for his friend. He wanted to satisfy his friend. So Duryodhan, he told us how Bhimsen had defeated him, and he was feeling somewhat despondent, right? He was somewhat dissatisfied. So to satisfy his friend without verifying, now this is also very interesting, that Ashwathama, he was son of Dronacharya, he was such a great warrior, लेकिन उसने अपने फ्रेंड से वेरीफाई नहीं किया कि उसको क्या प्लीज करेगा. सो एट द डार्क नाइट, when everyone, पांडवस के कैंप में जब सब सो रहे थे, he went in, like a thief, like a thug. He, went into the camp of Pandavas and सबसे पहले क्या, धृष्टद्युम्न के कैंप में गया, and he killed Dhrishtadhyumna in his sleep. Now this is a heinous act. It is not an act of a Kshatriya. And so afterwards he went into a camp where he thought that the Pandavas were sleeping, but there actually the 5 sons of Draupadi that she has, begotten for each of the Pandavas. यानी द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, एक युधिष्ठिर से था, एक भीम से था, एक अर्जुन से था, एक नकुल से था, एक सहदेव से था, वो पांचों यौवन मीन्स अगेन दे वर यंग, युवक, सो रहे थे. सो थिंकिंग कि ये पांडव सो रहे हैं, उसने उनको स्लीप में ही मार दिया, सोते हुए. और उसके बाद में जाके दुर्योधन को बताया कि देखो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है. बट दुर्योधन डिड नॉट अप्रूव दिस. ही वॉज अ क्षत्रिय, राइट? एंड क्षत्रियस कभी ऐसा ग्लानी वाला काम, मीन्स डिफेमिंग वर्क, दे डोंट अप्रिशिएट. दे आर वेरी very much into name, fame and glories. They always want to be remembered for their good deeds. As जैसे कि होता है राजाओं के, उसमें क्षत्रियों के खून में दौड़ता है कि हमें अपने ग्लोरीज फैलाना, अपना यश फैलाना है. तो जब दुर्योधन ने सुना, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. तो ऐसे में अश्वत्थामा बहुत ही सैड हो गया, लेकिन वही अब क्या करे. फिर उसको बाद में जब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, द्रौपदी आई, उसने देखा उसके ब्रदर को मार दिया गया है, उसने देखा कि उसके बेटों को मार दिया गया है, राइट? सो नाउ अभिमन्यु को युद्ध स्थल पे ही मार दिया था 7 योद्धाओं ने, राइट? वी नो दैट. एंड दैट वाज अ हीनस एक्ट आल्सो, बिकॉज ही वाज विदाउट हिज चैरियट, ही वाज विदाउट एनी वेपन as he was fighting, and instead of fighting with 1-on-1, there were 7 against 1, and they killed him when he was completely devoid of any weapon. जब उसके पास कोई हथियार नहीं थे, जब वो थक चुका था, तब उसको मारा.
तो अब पांडवों की वंश कैसे चलेगा, राइट, बिकॉज द्रौपदी के पांचों बेटे मारे गए। तो उत्तरा वॉज एक्सपेक्टिंग, राइट। सो परीक्षित महाराज का जो बचाने की स्टोरी आएगी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वे क्वीन कुंती की प्रेयर्स भी हैं, बहुत ही स्वीट प्रेयर्स हैं। लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू जस्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो देवर्षि नारद जब गए व्यासदेव के आश्रम से, आफ्टर गिविंग में इंस्ट्रक्शंस, जब उन्होंने अपना पूर्व जीवन के बारे में बताया, कैसे वो शूद्र बॉय की तरह से थे और कैसे उनको अध्यात्म का ज्ञान हुआ, भगवान उनके हृदय पे प्रकट हुए और उनको इनकरेज करने के लिए, तो फिर वो भगवान के गुणगान करते हुए अपना उन्होंने जीवन बिताया। और फिर उस जीवन के अंत में उन्हें आध्यात्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी रिसीव हुई, राइट। इट वाज कॉल्ड थंडर एंड लाइटनिंग, एंड लाइटनिंग हैपेंस बिफोर थंडर। थंडर इज पेन ऑफ डेथ, but the lightning is to receive spiritual body. So what happens to material body is not useful at that point. तो उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि व्यासदेव को कि उनकी त्रुटि क्या थी, उनकी शॉर्टकमिंग क्या थी, क्योंकि उन्होंने वेदास तो बिल्कुल सही लिखे, लेकिन उन्होंने ये रिवील किया कि जो कलयुग में लोग होंगे जिनके लिए वेदास लिखे गए, महाभारत लिखी गई है, सारे उपनिषद लिखे गए, वेदांत सूत्र लिखे गए हैं, उसमें वो लोग ये सारी हम कलयुग में जो लोग होंगे वो नॉट वेरी इंटेलिजेंट, राइट, लेस इंटेलिजेंट। सो दे आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स श्रीमद् भागवत में पहले ही बता दिया था, जो कि सेजेस एट नैमिषारण्य। तो ये सारा सुत गोस्वामी कहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं? दिस इज एट नैमिषारण्य। शौनक ऋषि इज द speaker, he is representing the sages, and the Vyasa आसन पे कौन है? It is Sutta Goswami. और even the sages revealed प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग है उपरुदता। ये कली एज में जो लोग का जन्म होगा उनकी अल्पायु होगी, राइट। हम वी अंडरस्टैंड कि हम लोगों के तो 100 ईयर्स तक ही होती है जैसे एवरेज, अब तो 70-80 हो गई है। एंड नियर द एंड ऑफ कली युग इट विल बी बिटवीन 18 and 25। कैन यू इमेजिन कितनी कम हो जाएगी आयु। सो द्वापर युग में 1000 ईयर्स तक लोग जीते थे एवरेज, और उससे पहले त्रेता युग में 10,000 ईयर्स तक जीते थे, उससे पहले सतयुग में 100,000 ईयर्स तक जीते थे। तभी उस समय कृत्य तदध्यायते विष्णु, इन कृत्य युग सतयुग में पीपल कुड मेडिटेट, राइट। 10,000 ईयर्स प्रचेतस ने मेडिटेट किया। त्रेता युग में जब ऑस्टेरिटी खत्म हो गई द्वापर युग में, सो अगेन 4 legs of religion we have covered this: austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. So with going of Satyug, austerity vanished, right? It diminished, not vanished but it diminished. तो जब austerity नहीं रही, जब तप करने की क्षमता नहीं रही, तो लोगों ने यज्ञ किए, फायर सैक्रिफाइसेस। तो उसके अंदर 6 टाइप्स ऑफ क्लीनलीनेस, 6 प्रकार की शुद्धियाँ चाहिए होती हैं। सामग्री की शुद्धि चाहिए होती है, स्थान की शुद्धि चाहिए होती है, जो पंडित हैं, जो श्लोकास वगैरह उच्चारण कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं फायर ऑब्लेशन में, उनकी शुद्धि चाहिए होती है, होस्ट की चाहिए होती है। इस तरह से 6 शुद्धियाँ। सो क्लेनलीनेस वॉज स्टिल देयर, बट देन आफ्टर Treta Yuga went away, even cleanliness diminished. So now mercy and truthfulness was there. Mercy, which is again Lord Krishna himself appeared to Dwapari Paricharyayam. So Dwapar Yuga mein people could go Paricharya, which is pilgrimage. They would go on pilgrimage. We saw इसके अंदर बताया है श्रीमद् भागवत में, विदुर जी पिलग्रिमेज पे गए, उद्धव को भगवान ने पिलग्रिमेज पे भेजा। जब कुरुक्षेत्र का वॉर था उस समय लॉर्ड बलराम उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कुरुक्षेत्र के उसमें, वो भी पिलग्रिमेज में चले गए। तो एंड deity worship at the temples was the way, right? So बहुत सारे पिलग्रिम्स, बहुत सारे जो तीर्थ स्थान थे, वहाँ पे भगवान के बड़े बड़े मंदिर बने, वहाँ पे भगवान की ऑपुलेंटली पूजा होती थी। तो जब तीर्थ स्थान पे लोग जाते थे, आप स्नान लेते थे, भगवान की पूजा अटेंड करते थे और साधुओं का सत्संग लेते थे, राइट? तो ऐसे में उनका जीवन का उद्धार होता था। विदुर जी ने जैसे मार्कंडेय ऋषि से, हम जैसे पढ़ेंगे आगे अगेन 2nd 3rd कैंटो में। सो उस तरह से लोग अपना प्योरिफिकेशन करते थे और अटेन करते थे परफेक्शन। एंड कला तधरी कीर्तन, अब कली एज के आने से इवन मर्सी डिमिनिश्ड। दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी स्लॉटर हाउसेस आउट देयर,
And people, they love objects and they exploit people. That is the tendency आज के ज़माने में. आदमी इतना लालच हो गया, मनुष्य इतना लालची हो गया है कि वो चीज़ों से प्यार करता है, अपने लव वंस की तरफ भी कंपैशन नहीं शो करता है बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. तभी इसलिए बोला जाता है कि भक्ति में क्यों लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति में मिलन सा, लव इज द फाउंडेशन, राइट. एंड हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज तो कहते थे कि जब किसी से मिलो, राइट, किसी दूसरे वैष्णव से, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी से भी मिलो, किसी टाइप के लिविंग एंटिटी, यू शुड बी सो कंपैशनेट. ऐसे प्यार से बात करो जैसे तुम्हारे जो आध्यात्मिक सफ़र है, इसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका सक्सेस एंड फेलियर कंप्लीटली ईच इंडिविजुअल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे एक दूसरे से कन्वर्स कर रहे हैं, कितना कंपैशनेटली हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं. बिकॉज कंपैशन, लव, ग्रैटिट्यूड, दीज आर वंडरफुल क्वालिटीज जो हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं. लॉर्ड कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में अगेन एंड अगेन कि दीज आर द क्वालिटीज, सिंप्लिसिटी, राइट, और आचार्य उपासना, और इस तरह से. हरे कृष्णा. सो वी कैन कंटिन्यू टू प्रोग्रेस फर्दर. तो everything is based on how we interact. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टका में हम लोग को जो 3rd वर्स दी है, वो तो लिटरली हम लोगों को गले में बांध लेनी चाहिए. तनादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णु ना अमाने ना मान देना कीर्तनीय सदाहरी. Thinking of oneself more humble than the grass, more tolerant than the tree, not expecting any respect from others, amanina, and then giving all respect to others, manadena. Not just, so these are 4 different qualities. Sometimes people combine the last 2 together, but at the same time, by taking to devotional service, right, by becoming so tolerant, and ये सब क्यों कैसे आता है? Because when we love God, we love all of His creation. We see everything in relationship with Krishna. जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे सामने प्रकट है, जो भी हमें परसीव होता है, सब हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि इट इज़ ऑल कनेक्टेड विद लॉर्ड श्री कृष्णा, राइट. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान. So he is the supreme consciousness, he is the supreme eternal being, and हर कोई, they are unlimited beings, have been maintained by Lord Shri Krishna, and we just happen to be a very small part of his vast creation. So what is it? We have only one potency that can grow, and that is the potency of loving each other, the potency of being grateful for the Lordship. And Lord, He is unlimited. Now sometimes people say, okay, in this particular case, जैसे इसमें आया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यास थे उन्होंने क्या किया, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन 11 and 12 इस चैप्टर में आए हैं, दैट वी हैव टू बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर. एंड सो शौनका ऋषि, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि यस, व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन मिल गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 10, कि व्यासदेव जी ने, अगेन ये तो एक्चुअली 6 क्वेश्चंस में भी एक पार्ट था, कि व्हाट इंस्पायर्ड व्यासदेव टू राइट श्रीमद् भागवतम, राइट. एंड इट वाज देवर्षि नारद हु इंस्पायर्ड हिम. ये सब समझ में आ गया एट नैमिषारण्य. और यही जो सुत गोस्वामी ने क्या रिवील किया कि ये श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने सुनाएंगे एट नैमिषारण्य टू द ग्रेट सेजेस एट नैमिषारण्य, एंड देयर स्पोक्स पर्सन इज शौनक ऋषि. तो उनको जब सुनाएंगे श्रीमद् भागवतम, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम कहाँ से सुनी है ये भी जानना जरूरी है. उन्होंने ये सुखदेव गोस्वामी से सुनी. उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को अपने स्पिरिचुअल मास्टर, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर की तरह रिफर किया, क्योंकि ऑलरेडी हैड अ इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर. एंड हु इज सुखदेव सुत गोस्वामी एंड सुखदेव गोस्वामी ऑल्सो, देयर Diksha Guru is same, right? So it is very interesting that you can have the same Diksha Guru, but you among the God brothers may also be an instructing spiritual master to another God brother. Just like Shukdev Goswami जो थे वो शिक्षा गुरु भी थे सुत गोस्वामी के, जबकि सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के दीक्षा गुरु कौन थे? व्यास देव. अच्छा, तो उन्होंने
सुखदेव गोस्वामी की ग्लोरीफाई किया, उनकी क्वालिफिकेशंस बताई, दैट ही वाज ऑलरेडी अ रियलाइज्ड सोल। उनसे उन्होंने ये सुना एट द बैंक ऑफ गैंजेस, जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। और दिस इज अमेजिंग, परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। सो एवरीवन इज क्यूरियस कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कि कैसे हुआ। एंड Srimad Bhagavatam was written by Vyasdev, but Vyasdev is Trikalagya, right? Who knows the past, present and future. तो शीला व्यासदेव ने ये सारा वर्णन क्यों लिखा श्रीमद् भागवतम, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। He was able to see it by the mercy of the Lord. So he is the empowered incarnation, शक्तावेश अवतार हैं भगवान के। तो उनको बहुत सारे जो जीवस होते हैं उनको अगर एम्पावर करते हैं भगवान, तो उनको शक्तावेश अवतार बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि शक्तावेश अवतार बाकी अवतारों से कैसे डिफरेंट होते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्णा इज अवतारी, एंड फिर भगवान विष्णु परुष अवतार हैं, युग अवतार हैं, लीला अवतार हैं। उसमें एक सिक्स्थ काइंड है जो कि शक्तावेश अवतार। सो दीज आर जीव तत्वस, राइट, हु आर एम्पावर्ड। तो ऐसे में वो पूछ रहे हैं कि जब व्यासदेव चले गए तो, और सॉरी नारद मुनि चले गए, तो व्यासदेव जी ने क्या किया। सो बता रहे हैं सुत गोस्वामी दैट व्यासदेव जी ने वाटर को टच करके, जो कि आचमन, इन अ शॉर्ट वे इट से कि आचमन किया फॉर प्यूरिफिकेशन। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी कोई काम करते थे, राइट, हमारे कल्चर में, सनातन धर्म में, हमेशा शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से अपने आप को प्यूरिफाई करके, दैट लेट देयर बी नो कंटैमिनेशन एक्सटर्नली और इंटरनली। तो जो भी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इट इज़ वेरी सिंपल इन टुडेज टाइम, राइट। एक्सटर्नली वी कैन टेक बाथ, अगेन टच ऑफ वाटर इज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बाथ्स, बट वाटर बाथ इज द मोस्ट रिकमेंडेड वन। आज के समय सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। देयर इज ऑल्सो बाथ फ्रॉम एशेज, देयर इज ऑल्सो बाथ फ्रॉम एयर, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ बाथ्स, बट स्टेइंग विद द प्रेवलेंट प्रैक्टिस, आज के समय जो प्रैक्टिस होता है वो पानी से लेते हैं, बिकॉज इट इज़ रिजुविनेटिंग, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर एंड इट इज़ प्यूरिफाइंग। एयर इज़ द मोस्ट प्यूरिफाइंग वन, बाय द वे, लॉर्ड कृष्ण भगवद गीता में रिवील करते हैं। एनीवे, सो यहाँ पे वो जब आचमन करके अपने मेडिटेशन पे गए, सो व्यासदेव एट दैट टाइम एंड द लोटस ऑफ इट हिज हार्ट वाज एबल टू सी लॉर्ड कृष्णा एज वेल एज माया। So this is reference to his external potency, Mahamaya, who is maintaining and running this universe administration. Srila Prabhupada was very straightforward. He would call it out like this is Durga Devi. And so when he saw, again, Devashi Narad, when he saw on the lotus of his heart, when he was a maidservant's son, at that time, Lord appeared only to encourage him. यहाँ पे व्यासदेव जी के हृदय में जब भगवान प्रकट हुए, तो माया उनके सामने नहीं थी, माया उनके पीछे थी। क्यों? कृष्णा सूर्य समा माया ही अंधकारा, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया राधिकारा। सो भगवान कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, तो वहाँ पे माया का इन्फ्लुएंस ही नहीं है, राइट। Yet at the same time, that's why she is always staying behind him, right? And she also represents darkness. Why? Because हम लोग जब भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, राइट, डिफरेंट लिविंग एंटिटीज, 8.4 मिलियन स्पेसीज, 84 लाख योनियों में, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हमें कुछ जो शरीर मिल जाते हैं ना, हम उसके कारण हिसाब से कंडीशन हो जाते हैं, एंड वी थिंक दैट वी आर दिस बॉडी। अब आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, यू नो, डॉग्स बॉडी, देन दे विल बिहेव लाइक अ डॉग, इवन इफ दे डोंट वांट टू, दे विल बिहेव, बिकॉज वो कंडीशनिंग है। किसी को कैट बॉडी मिला है, दे विल बिहेव लाइक अ कैट, राइट। किसी को हॉक का बॉडी मिला है, दे विल बिहेव लाइक अ हॉक। एंड श्रील प्रभुपाद इसलिए भी बोलते थे कि हमें अध्यात्म का अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें अध्यात्म की इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कहाँ यहाँ क्यों आए हैं, व्हाट इज़ आवर पर्पस, व्हाई इज देयर सो मच मिजरी, व्हाई इज देयर सो मच एंग्जाइटी, हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल इन अ न्यू ईयर, राइट। ऑल दीज इंक्वायरीज, हाउ कैन आई स्पिरिचुअलाइज माई वेरी बॉडी सो दैट आई एम नॉट हैविंग मटीरियल एक्सपीरियंसेस। जब हम भौतिक जगत में, तो भौतिक एक्सपीरियंसेस क्यों लें, वाई वर्डली एक्सपीरियंसेस, रादर वी वांट टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग एंजॉय करते हैं, वो वाले एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। तो फिर हमें वही एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करते हैं। वहाँ पे हर कोई क्या कर रहा है, हर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, हर कोई वो चॉइस कर रहा है जो भगवान की चॉइस है, भगवान के डायरेक्शन पे, भगवान की सेइंग पे चल रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड
व्हाट आर दोज चॉइसेस, और उससे हमारा कैसे उद्धार हो सकता है, हम कैसे आध्यात्म का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने कहा था कि उनके जब वो डिवोशनल सर्विस में लगे उसी समय उनकी स्पिरिचुअल मेमोरी डेवलप होना शुरू हो गई, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डेवलप होना शुरू हो गई। सो वी कैन ऑल्सो स्पिरिचुअलाइज आवरसेल्फ। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कहा है कि जो पूरा प्रोग्राम है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, ये है हाउ टू स्पिरिचुअलाइज आवर वेरी सेल्फ। और हम कैसे कर सकते हैं? when we make the right choices, we have minute freedom, yes we have free, जो हमें थोड़ी सी आज़ादी मिली है, it is not that freedom कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं या आज़ाद इस नेशन के या उस नेशन के, it is the independence that we have received। आप आज़ाद तो हैं, लेकिन क्या आप इस 3 mode of material नेचर से आज़ाद हैं? That is the key point we should be asking, that is true freedom। और वो आप कब हो सकते हैं? जब आप भक्ति में लीन होते हैं, जब आप चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब देवर्षि नारद ने इस तरह से मेडिटेट के जाने के बाद उनके इंस्ट्रक्शन पे मेडिटेट करते हुए व्यासदेव ने जब देखा भगवान कृष्ण को और माया को, एक्सटर्नल पोटेंसी, सो अगेन योग माया इज रिप्रेजेंटेड बाय राधा रानी, राइट। इंटरनल पोटेंसी भगवान की हला देने शक्ति, जो प्लेजर पोटेंसी है वो है श्रीमती राधा रानी, और जो मटेरियल यूनिवर्स को मेंटेन करती है वो है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी को भी देखा और उसके बाद में उन्होंने ये भी देखा कि क्या हुआ, राइट। तो उन्होंने उस समय ये देखा कि अश्वत्थामा ने किस तरह से 5 बेटे जो थे पांडवों के और द्रौपदी के, उनको मार के, धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का ब्रदर था, द्रुपद का जो बेटा था, जिसका जन्म ही इसलिए हुआ था यज्ञ के थ्रू ताकि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके, उसको अंधेरे में, रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने मार दिया और उसका ने भाग गया। अब जब द्रौपदी को पता लगा तो अर्जुन को जैसे ही उसने देखा कि द्रौपदी रो रही है, वीप कर रही है, उससे अपनी पत्नी पे बहुत वो कंपैशन डेवलप हुआ। और क्षत्रियों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, राइट। सो ही इज अ क्षत्रिय। तो इमीडिएटली उसने कहा कि मैं अश्वत्थामा जिसने ये किया है उसको तुम्हारे सामने ला के रखूँगा ताकि उसका सर पे खड़े होकर, मीन्स आई विल ब्रिंग हिज हेड फॉर यू, और उस पर खड़े होकर तुम अपने बच्चों का श्राद्ध करना, फाइनल राइट्स जो करना अपने ब्रदर का और बेटों का। सो और ये कह के भगवान कृष्ण के साथ वो निकल गया। भगवान कृष्ण इस समय भी उसके साथ ही बने और अश्वत्थामा के डायरेक्शन में गया। नॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे उन्होंने अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा ने देखते ही इमीडिएटली भागा, लिटरली अपने चैरियट से भागा, और उसके बाद में भागते हुए जब वो देखा कि उसके हॉर्सेस थक गए हैं तो वो पैनिक कर गया, राइट। नाउ दिस इज व्हाई हैपनिंग बिकॉज ही इज अ ब्राह्मण बंधु, ही इज नॉट प्रॉपर्ली अ क्षत्रिय। उसके पिता को जो विद्या थी वो तो ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य, but he was a Brahman Bandhu. He was not fully a Brahman, he was not fully a Kshatriya, right? He was switching between the two in those mode of goodness, mode of passion पे। तो वो पैनिक कर गया because he was not in his natural state। तो उसने अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था ब्रह्मास्त्र, उसको शूट किया, लेकिन उसको शूट करने से पहले भी उसने पानी को टच किया, राइट। अगेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इज देयर कि हमें जब भी रिजुविनेट करना है, हमें जब भी प्योरीफाई करना है, वी टच वाटर टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। उसने मंत्रों का उच्चारण किया टू रिसिचुएट, टू एम्पावर। इसलिए हम लोग अपने शरीर को इसी तरह से पूरी तरह एम्पावर करने के लिए, पूरी तरह से सुटेबल करने के लिए अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट एक्टिविटी क्या करते हैं? पानी से अपने आप को रिजुविनेट करते हैं और उसके बाद में मंत्र पढ़ते हैं। एंड द टॉप मोस्ट मंत्र, महामंत्र इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से एक्सटर्नली क्लीन होते हैं, इंटरनली बाय चैंटिंग से क्लीन होते हैं, तो उसके बाद में हम पूरी तरह से रिजुविनेट, एनर्जाइज हो जाते हैं। और मिनिमम 16 राउंड्स करना चाहिए। देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम। Yet at the same time when we energize, then we carry out the activities। तभी हमें ये कैपेबिलिटी आती है कि हम जो चॉइसेस करते हैं they become the right choices because we are constantly remembering Krishna, his name, form, activities, pastimes, we're constantly remembering। because Lord Krishna ने अर्जुन को क्या कहा था?
Matta smaran yuddha cha, remembering me, right? Smaran, remembering. Yuddha cha, stand up and fight. युद्ध. सो इसी तरह से हम अपने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, उनका नाम का जप करते हुए अपने सारे दिन की कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हैं. तो अश्वत्थामा इज ऑल्सो शोइंग दैट ही टच्ड द वाटर, ही सेड द मंत्रास, picked up Brahmastra and he shot towards Arjun. Now Arjun is saying that suddenly there is heat coming, something majestic is happening, and he immediately, anytime, so this is a mood of a devotee. When a devotee gets bewildered, what does he do? वो immediately भगवान की तरफ फेस करके बोलता है कि my dear Lord Krishna, what is going on? ये क्या है? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये अश्वत्थामा के कारण हुआ है, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, जबकि उसको रिट्रीव करना नहीं आता है, लेकिन वो पैनिक स्टेट में है. तो पैनिक स्टेट में उसने जो ब्रह्मास्त्र को तुम्हारी तरफ चलाया है, अब तुम्हें उसको केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र, तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है उससे ही तुम उसे नलिफाई कर सकते हो, एंड yet at the same time retrieve it back. So it is by Lord's potency that Arjun goes one step ahead, right? This is the mood of a devotee. Arjun बताता है हमें कैसे दिनचर्या करना. He also touched water. अब आपको तीसरी बार सेम लेसन मिल रहा है. व्यासदेव मेडिटेशन से पहले टच करते हैं वाटर को, मंत्र पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, भगवान को हृदय में देखते हैं. अश्वत्थामा पैनिक स्टेट में भी वाटर टच करके अपना को रिजुविनेट करता है, प्यूरिफिकेटरी मंत्रस पढ़ता है, इन्वोकेशन मंत्रस पढ़ता है, और उसके बाद में ब्रह्मास्त्र चलाता है. अर्जुन ही गोज वन स्टेप फर्दर, वाटर टच करके रिजुविनेट करता है, प्यूरिफाई करता है अपने आप को, भगवान के 3 परिक्रमाएं करता है भगवान कृष्ण के, और फिर उनके डायरेक्शन को हृदय में रखते हुए ब्रह्मास्त्र चलाता है. और जब दोनों ब्रह्मास्त्र मिलते हैं, बाय लॉर्ड्स पोटेंसी अर्जुन इज एबल टू रिट्रीव बैक बोथ द ब्रह्मास्त्र. लेकिन उस समय जो स्कॉचिंग हीट जनरेट होती है इन 3 स्काई, इट अपीयर्ड लाइक सब सारे नहीं कि केवल पृथ्वी लोक, बट इवन सारे ग्रहों में, ऑल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, लोगों को ऐसा लगता है जैसे संवर्तक क्लाउड्स के समय, जब एनाहिलेशन के समय जैसे हीट जनरेट होती है द फायर, वैसी स्कॉचिंग हीट फील होती है. सो अगेन this happens when Lord Brahma goes to sleep, right? That's also one at the end of every day. At that time, Indra sends Samvartika clouds and they cause all the annihilation, right? So here, what happens, इस पे क्या हो रहा है कि अर्जुन उस समय जाके अश्वत्थामा को बांध लेता है, because Ashwatthama is shocked. His best weapon has been defeated, and this time अर्जुन जाके उसको रस्सियों से बांध के लेके आता है द्रौपदी के सामने. लेकिन उससे पहले एक बात होती है. लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कौंतेया, सन ऑफ कुंती, दिस ब्राह्मण बंधु, दिस सन ऑफ अ ब्राह्मण, राइट? सन ऑफ अ ब्राह्मण इज नॉट ब्राह्मण. श्रील प्रभुपाद इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बोलते हैं. पीपल हैव टू डेवलप क्वालिफिकेशन. इट इज नॉट कि फादर अगर हाईकोर्ट जज है तो बेटा अपने आप हाईकोर्ट जज बन गया. नो, ही हैज टू स्टिल go through the education, build up the qualification. अगर फादर डॉक्टर है तो बच्चे को भी, बेटा अगर है डॉक्टर का बेटा, तो उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने आप को डॉक्टर बनने के लिए. ही कैन नॉट जस्ट स्टार्ट अ प्रैक्टिस, माय फादर वाज अ डॉक्टर. देयर इज एन ओल्ड सेइंग इन इंडिया कि मेरे दादा ने घी खाया था, मेरी हथेली सूंघ लो, राइट? दिस इज टू से दैट दिस कास्ट सिस्टम हैज इंट्रोड्यूस समवॉट ऑफ अ मिसरिप्रेजेंटेड, ये वर्णाश्रम सिस्टम का पार्ट नहीं है. और ये जो धारणाएं बनाई हैं, दिस इज बिकॉज पीपल वर नॉट क्वालिफाइड, बट दे वर वेरी मच अटैच्ड टू देयर सन्स एंड ग्रैंड सन्स. सो उनको पोजीशन कैसे मिले, भाई हमारे बेटे हैं, हमारे पोते हैं, इस तरह से उन्होंने अपने बेटों को करा. ये जो इन्फ्लुएंस चला वो आज तक इंडिया में प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है एक्चुअली. अब तो ज़्यादा है, ब्रिटिशर्स का समय भी इतना नहीं था जितना आज है. उस समय भी लोगों में इतना इंटेलिजेंस था कि यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू बी called a Brahman, you have to be qualified to be a Kshatriya. लेकिन now वही है ना, मंद सुमंद मत्यो, मंद भाग्य प्रदुता. मंद मीन्स लेजी है पीपल आज के समय में, सुमंद मत्यो वेरी लेस इंटेलिजेंस, राइट? पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे. और मंद भाग, वैसे ही अनलकी हैं बाय वेरी नेचर. मंद भाग है, उप्रदुता, एंड कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड. So they get disturbed and then they disturb others.
आज के समय पे आदमी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जीता है, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली meditating and getting disturbed by the relativity, heat and cold, happiness and distress, right? And it's in a mode of darkness, as we studied. आज जैसे हम लोगों ने पढ़ा था earlier in the previous class, chapter 18 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें modes of material nature का जो influence है, that's what we are studying. 19 through 40 verses of chapter 18 of श्रीमद् भगवद गीता. उसमें कैसा क्लियरली दिया हुआ है किस तरह की नॉलेज है, कैसा डिटर्मिनेशन है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, और किस तरह की हैप्पीनेस आती है ऑफ द 3 मोड्स. और ये जो मोड्स है ये भी मटेरियल मोड्स हैं. यू हैव टू राइज अबव द मटेरियल मोड्स. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. इट इज़ नॉट गॉडलीनेस. भक्ति इज गॉडलीनेस. भक्ति इज अलाइनमेंट विद द सुप्रीम. तो हमें जो चॉइस करनी चाहिए वो भक्ति योगा के थ्रू करना चाहिए, जो कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ज्ञान योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल एक्टिविटीज़ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हमें करना चाहिए जैसे भगवान चाहते हैं. तभी तो हम लोग राइट चॉइस कर सकेंगे, विच विल प्लीज कृष्णा, विच विल प्लीज एवरीवन, एंड इट इज़ बेनिफिटिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी, राइट? इट इज़ शोइंग अ कंपैशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड. No violence. It is not showing violence. It is compassion. And sometimes, we see, and we also studied कि कैसे जो terrorists होते हैं, people who are constantly disturbed, they disturb others, they are in the mode of ignorance. It's a very, very sad thing. But we have to be very cautious. So अब अर्जुन को भगवान बोलते हैं जब से उसने अश्वत्थामा को that kill him, this son of a Brahman, द्रोणाचार्य का रेफरेंस करते हुए, kill him because he killed sleeping boys, young boys, and the brother of Draupadi. But Arjun, he is a Kshatriya, right? And then उन्होंने याद भी दिलाया अर्जुन को कि तुमने कहा था द्रौपदी को इसका सर प्रस्तुत करोगे, तो तुम इसका अभी मार दो फिर उसके बाद में. लेकिन अर्जुन जो है ना क्षत्रिय है, he has a mind of his own. So this is also a lesson that we should carry out, lost instruction, otherwise there can be difficulty. लेकिन there is also an influence. अर्जुन द्रौपदी के पास ले आना चाहता है, उसको चूज करने देना चाहता है, तो वो लेके जाता है अश्वत्थामा को बांध के और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करता है. ही प्रेजेंट्स अश्वत्थामा कंप्लीटली टाइड अप इन फ्रंट ऑफ द्रौपदी. अब द्रौपदी जैसे ही देखती है तो बोलती है फ्री हिम, फ्री हिम. क्यों? क्योंकि द्रौपदी जानती है ये तो द्रोणाचार्य, अर्जुन के सारे पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका बेटा है, और उसकी जो मदर है वो कृपी है, कृपाचार्य की बहन. एंड उन्होंने जो कृपी थी उन्होंने सती नहीं बनी थी द्रोणाचार्य. क्यों? क्योंकि अगर बेटा होता है ग्रोन अप सन, तो वो जो वाइफ होती है वो सती नहीं बनती है, बिकॉज शी हैज़ अ सन हु विल टेक केयर ऑफ हर. अगेन सनातन धर्म में ये इम्पोर्टेंस बताई है कि जो वीमेन आर दे आर प्रोटेक्टेड व्हेन दे आर young girls by their father and also their brothers. Yes, sometimes people say just father, no, brothers are also protecting her. And when they go to the in-laws place, when they are grown up, the husband provides the protection, provides the care, right? They are like children. Women are not suppressed in Indian culture, in Sanatan Dharma. Rather उनको अच्छी तरह से पति की देख रेख में, पति शुड प्रोवाइड, द हस्बैंड शुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी थिंग्स फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, फॉर नाइस डेवलपमेंट एंड कल्चर ऑफ वीमेन, ऑफ देयर वाइफ. एंड देन जब पति या तो वनवास ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, या फिर अर्ली डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ग्रोन अप सन होता है, देन दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मदर, टू द विडो. और अगर बेटे नहीं हैं तो देन दे कैन गो बैक टू देयर फादर्स शेल्टर. दैट्स ऑल्सो देयर. जरासंध की जो बेटियां थी दोनों, आफ्टर कंस वाज किल्ड दे डिड नॉट हैव अ सन. कंस का कोई बेटा नहीं था, तो वो वापस जरासंध के पास जाती हैं. दैट्स ऑल्सो देयर इन द शास्त्रास. सो women are like children. They need proper care. They are very much emotional. They are driven by heart. So this is mamta, comes from women. They have very tender heart. They are very loving. They are very compassionate. इसलिए माँ की जो वैल्यू होती है हमारे इंडियन कल्चर में वेरी हाईली एस्टीम, राइट? सिस्टर की जो वैल्यू होती है वेरी हाईली एस्टीम. वाइफ की वैल्यू होती है very highly esteemed, and daughter they are called Lakshmi, right? Similarly, Bahu, son, daughter-in-law, they are called Lakshmi, right? Because they are very highly taken care of,
And just like, why they call Lakshmi the goddess of fortune? Because just like, if they are happy, if they are very well taken care of, then everything in the family will be very nicely taken care of. तो ये एक कॉमन बात है जो हम लोग अपने भारत की संस्कृति में देखते हैं, राइट? सनातन धर्म में ये देखते हैं, वर्णाश्रम धर्म में ये देखते हैं. Now the caste system has messed things up for us, right? Somewhat, we all agree कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस कर दी हैं जहाँ पे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है विमेन का, इसलिए विमेन राइट्स की बात आती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. नाउ यहाँ पे द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा को, ही इज टाइड अप लाइक एन एनिमल, बोलती है, नो फ्री हिम, ही इज सन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ कुड यू टाई हिम? सो दिस इज इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, ऑफ द पांडवास. एंड द्रोणाचार्य की बात हो रही है, बोलती हैं कि जैसे मैं अग्रीव हो रही हूँ, जैसे मुझे दुख हो रहा है मेरे बेटों की मौत के बाद, आई डोंट वांट कृपी, द्रोणाचार्य की जो वाइफ है, कृपाचार्य की जो बहन है, वो मेरी तरह लमेंट करें अपने बेटे के डेथ के बारे में सुन के, बिकॉज देन शी वोंट हैव एनी शेल्टर. एटलीस्ट द्रौपदी हैज हर 5 हस्बैंड्स एज हर शेल्टर, लेकिन देन कृपी के पास तो कोई शेल्टर ही नहीं होगा. यस, हर ब्रदर कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वी ऑल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, राइट? आचार्य एक्सप्लेन. यह कंपैशन, ममता द्रौपदी की हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताती है. एंड इंटरेस्टिंगली दैट इज ऑल्सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन व्हाट शी इज सेइंग, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव इज करेक्ट. सो पर्सपेक्टिव मैटर्स व्हेन वी पुट इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड समटाइम्स पीपल से, बट मनु संहिता में तो दिया हुआ है कि अ पर्सन हु इज अ मर्डरर, ही शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, उसको फांसी लगना चाहिए, उसको डेथ पनिशमेंट देना चाहिए. मनु संहिता में जरूर दिया हुआ है. हाउएवर आज के समय पे अगेन एंड अगेन इट हैज बीन प्रूवन दैट मेनी इनोसेंट पीपल हैव बीन गिवन डेथ कैपिटल पनिशमेंट, जो उनको फांसी दे दी गई. उसके बाद में रिवील होता है कि एक्चुअली वो तो निर्दोष थे, दोष किसी और का था, इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट को आज के समय पे फेवरेबल नहीं माना जाता है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष लोगों को सजा हो जाती है और जो दोषी होते हैं वो छूटे रहते हैं. यस, for a person who has committed the sin, it is the right, judgment. However, if the person is innocent, और बहुत से बाद में पता लगता है, that's why capital punishment is not a good idea in today's society, क्योंकि बहुत गलत, unless it has been proven. तो ऐसे में जब वो ये कहती हैं, और उसका नाम युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, right? He is son of Dharmaraj, as well as he was called, he received the title of Dharmaraj, because he always stood by the religious principles. Duryodhan never violated religion. He actually used religious principles when they were in his favor. He would not call out to religious principles when they were not in favor. That doesn't mean that he was, violating them. Yudhishthira Maharaj, every time he called out something as a religious principle, it was actually unfavorable for him. But still, he would stand by the religion, right? Or Lord Krishna, he violated religion because he is the one who is the origin of religion. So but he did it for the benefit of others, right? It is very important that he was doing it for the benefit of others. So that is, he was even looking at a higher purpose of religion. Religion is meant to take us back home, back to Godhead. तो ऐसे में जो धर्म का पालन करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अध्यात्म जगत का और अध्यात्म ज्ञान के हिसाब से चलते हुए वापस अपने बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड जा सकें. टू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक राइट चॉइसेस. अब ये कितनी टफ चॉइस है. यहाँ पे अर्जुन ने प्रेजेंट किया है, और युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भगवान कृष्ण, एवरीवन सेज यस, एंड देन भीम कम्स, ही सेज नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव टू पनिश हिम. और फिर अर्जुन, तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी, यू टुक अ वो कि इसका वध करोगे. तो भगवान कृष्ण नाउ सडनली चेंजेस हिज साइड, बिकॉज भीम का पर्सपेक्टिव सही है दैट दिस गाय हैज किल्ड, ही इज अ ट्रू मर्डरर, यस इट हैज बीन प्रूवन, और ही हिमसेल्फ हैज एक्सेप्टेड कि उसने. तो अब ऐसे में राइट चॉइस क्या करे अर्जुन, राइट? नाउ ही इज कॉट अप बिटवीन, एंड नाउ लॉर्ड कृष्णा, ही इज सेइंग ऑलमोस्ट लाइक स्माइलिंग विद इन तम मधुसूदन, जैसे उन्होंने भगवत गीता में जब अर्जुन बिविल्डर हो गया था ना, वैसे मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा कटाक्ष मारते हुए जैसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि भाई अर्जुन, अब तुम्हें
द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल सहदेव की बात भी माननी है, लेकिन तुम्हें अब भीम और मुझे भी सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे मोमेंट पे अर्जुन, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट्स द पर्पस, राइट, ही अंडरस्टैंड्स द एसेंस, भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। तो वो क्या करता है, अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि होती है वो निकाल लेता है और उसके बाल काट देता है। सो कटिंग ऑफ द शिखा इज लाइक डेथ, राइट, एंड इट इज़ द राइट एज पर रिलीजियस प्रिंसिपल। व्यासदेव बता रहे हैं, सुत गोस्वामी रिवील कर रहे हैं उसी फैक्ट को एट नैमिषारण्य के जो पर्सन, देयर इज नो इंजंक्शन टू डिस्ट्रॉय द बॉडी, द पर्पस इज to remove one's wealth, and the most important wealth Ashwatthama was having was his muddy on his forehead, and to remove his shikha, to उस तरह से उसकी जब शिखा काट दी तो उसको बिल्कुल शूद्र स्टेट पे कर दिया, एंड देन ही इज लेट आउट। नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक और प्रोफेसी है, राइट, एक भविष्यवाणी है कि जो अश्वत्थामा है इस फेज के बाद, जो चतुर्युगा का फेज होता है, उसके बाद में ही विल बी द नेक्स्ट व्यास। So that is given in the Shastras. We do not have any reference of that, but we have only heard, so I'm just sharing it. But I will do more research to find out where it is given. And now, interestingly, the right choice has been made. So how do we make right choices? When we get instructions from Lord Shri Krishna, when we understand the Shastras, because here contradictory statements were both right. To destroy him was also right, and to leave him, to let him live was also right. So how do you destroy someone while letting him live was the solution given and proven by Arjun. Arjun ने ये बताया कैसे करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उद्देश्य को मन में रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए उसने ये एक्शन किया। नाउ अब इंटरेस्टिंगली आपने सोचा होगा कि चलो 11th क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि व्यास देव ने देवर्षि नारद के जाने के बाद 12th क्वेश्चन क्या था। इट्स इंटरेस्टिंगली व्यास देव ने जब ये श्रीमद् भागवतम उनको जब रिवील हुई पूरी जो कि देवर्षि नारद के थ्रू हुई, उनके इंस्ट्रक्शंस पे हुई, तो व्यास देव ने इसको अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को भी प्रोवाइड किया, राइट, उनको स्टडी किया। नाउ समटाइम्स पीपल दे आस्क, व्यास देव ने ये जो लिखी थी तो 5000 साल पहले लिखी थी श्रीमद् भागवतम, इट डजंट अप्लाई, अब आज के समय में क्यों अप्लाई होती है। सो उसके रेफरेंस पे सुत गोस्वामी इज गिविंग one important verse. Anato pashvam sakshat bhakti yogam adhokshaje lokasya jananto vidvam chakre satvata samhitam. So the material miseries of living entities, right, which are superfluous. ये जो material miseries हैं, the three kinds of miseries we know, right, which is आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक is natural disturbances. आदि भौतिक is coming from other living entities, and adhyatmic is created by our own mind. ये जो तीन टाइप की मिसरीज होती हैं, these are superfluous. Why? Because they only affect the body. They don't affect हम लोग. We are all living entities. जीवेरा स्वरूपोय कृष्ण नित्यदास। कृष्णेरा तथस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। Now the second line is also very important. कि भाई we are eternal summit of Krishna, but we are तथस्थ शक्ति, भगवान की marginal potency है। Lord has three categories of potencies. Internal potency represented by Radharani, external potency represented by Durga Devi, and then Tatashta Shakti, the marginal potency, which are all the living entities. In the spiritual world, they have spiritual bodies, and in the material world, we have taken 8.4 million, one of the 8.4 million types of bodies. And so we are ahankar vibuddhata kartahamiti manyate. Then we, because of the influence of false ego, जो हमारा false ego अहंकार है, उसके कारण इस बॉडी के लेने के बाद में सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि इन रियलिटी इट इज़ द मटेरियल एनर्जी। जो बॉडी है, इट इज़ लाइक अ कार, वी आर द ड्राइवर। सो यस, वी हैव डिजायर एंड द बॉडी इज कैरिंग इट आउट। वी टॉक अबाउट द 5 फैक्टर्स टुडे ऑल्सो, चैप्टर 18 का डिस्कशन में, भगवद गीता के डिस्कशन में, कि देयर इज the body, which is the place, the field of activities. Then there are indriyas, the senses, Gyanendriya and Karmendriya, mainly Karmendriya, and Gyanendriya enable Karmendriya को act करने के लिए. Then there is the performer, the living entity, and then the super soul, and also the endeavor, जो भी हम activity कर रहे हैं. So these 5 factors are very important. तो इस केस में जब ये पूछते हैं, आप जब बताते हैं सुत गोस्वामी that व्यास देव ने
अपने बेटे को ये पास करी और सुखदेव गोस्वामी ने इसे स्टडी किया। ये नहीं कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है पापा मैं रीड कर रहा हूँ, नहीं, ये नहीं, आप मुझे सुना रहे हो, ये नहीं, उन्होंने प्रॉपरली उसे स्टडी किया। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सुखदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी रियलाइज पर्सनालिटी थे। हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी की स्टोरी कवर करी है। सो प्रीवियसली ही वाज शुक मीन्स पैरट, राइट, तोता। वो पेट थे किनके? राधा रानी के। ही वॉज द मैसेंजर पेट। तोता जो होता है पैरट, एज पैरट सुखदेव गोस्वामी इज कैरिंग मैसेज बिटवीन फ्रॉम राधा रानी टू लॉर्ड कृष्ण एंड फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण टू राधा रानी। सो ही वॉज, जैसे आज के समय में बोलते हैं ना कबूतर जा जा जा, like pigeons became the messenger afterwards, आज के समय पे, उस समय पे parrot used to do that. So Shukdev Goswami was that. And we also heard as how he already heard श्रीमद् भागवतम, जब लॉर्ड शिव जी पार्वती को सुना रहे थे उस समय सुना उन्होंने। उसके बाद में जब व्यासदेव अपनी पत्नी को सुना रहे थे उस समय सुना, और उसी समय उन्होंने उनके वूम में आ गए उनकी पत्नी के, और शुकदेव गोस्वामी के फॉर्म में उन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद में ही वॉज ऑलरेडी अ मुनि, राइट, ही वॉज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड बाय द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तब भी उन्होंने क्यों स्टडी किया? ऐसे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उसको रिवील करते हैं कि नॉर्मली जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं दे मे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन। They may be thinking aham brahmasmi, that Brahman is the Brahman effulgence जो है, जो कि eternal feature है भगवान का, उनकी बॉडी से effulgence निकलती है, उसको ब्रह्मन कहते हैं। And the sound of Brahman is pranav shadva, svar vedeshu, right? Om. So that is the vibration in Brahman. So constantly the vibration in Brahman is Om. तो बहुत सी बार जो मुनि होते हैं, जो कि अध्यात्म, जो ज्ञानी होते हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मन ही सब कुछ है। But understanding Bhagavatam, studying Bhagavatam reveals the truth, the absolute truth. Vadanti tattvavidas tattvam yajnanam avyayam brahmeti paramatmeti bhagvaniti shabdyate. The learned transcendentalists who know the absolute truth, they realize the absolute truth in three forms. What are the three forms? Brahman, Paramatma and Bhagwan. Brahman has the Sat feature. Paramatma in the heart, the super soul, has Sat and Chit feature, right? Sat is eternal and Chit is full of knowledge. And then Bhagwan is Satchidananda Vigraha. Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarva Karana Karanam. So Lord Krishna, he is Satchidananda. He is eternal, full of knowledge and full of bliss. So that is his form. And see, he is a form. So this is where Shukdev Goswami, when he studied, so there is a very beautiful verse supporting this. It's also known as Atmaram verse, and Madhya Leela of Chaitanya Charitamrita में 24th chapter में, when Sanatan Goswami inquires from Chaitanya Mahaprabhu, वो पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से, जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो उन्होंने उससे भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शंस काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। और चैतन्य चरितामृत में भी काफ़ी एस्पेक्ट्स आए हैं, इनके काफ़ी वर्सेस हैं भक्ति रसामृत सिंधु में जाती हैं, कि उन्होंने जो 24वां अध्याय है चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का, उसमें उन्होंने इंक्वायर किया भगवान से कि भगवान आप जब सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ थे तो आपने आत्माराम वर्स के 18 डिफरेंट मीनिंग्स बताए। सो आई वांट टू हियर दैम। अब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सी this is where he is showing the mood of a devotee, that the devotee is constantly ramanti cha tushyanti cha ramanti cha. भगवान का डिस्कस करने में हमेशा इतना ज़्यादा खोए होते हैं जैसे मजनू जैसे हो जाते हैं, राइट? तो ऐसी हालत में he says, I am like that, I am constantly in love with the lordship, and so राधा रानी का भाव है ना उनका, तो और वो सर्वभौमा भी ऐसे ही हैं। तो मैंने उस समय क्या उनसे बोला मुझे याद नहीं। Now he knows everything, but he is creating a situation to tell us more about Atmaram verse. और उसमें बोलते हैं कि let me tell you what I can understand, what I can derive from this verse. And वहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ में उन्होंने 18 मीनिंग बताए थे। इस 24 चैप्टर में उन्होंने 61 मीनिंग्स बताए, राइट?
And if we get another darshan of lordship and we ask about Atmaram verse, who knows, अगली बार वो 108 बता दें. He is unlimited, so his knowledge is unlimited, right? He can go on one topic unlimitedly. So what is this Atmaram verse जिसका इतना glorification है चैतन्य चरितामृत में, इतना glorification है भागवत में. So this Atmaram verse is Atmaramascha munyo nirgantraप्यौरुक्रमे kurvantyah tu kim bhaktim itham bhuta guno hari. So very simple translation by Srila Prabhupada. बहुत ही simple तरीके से Srila Prabhupada ने बताया कि all these varieties of Atmarams, right, different kind of transcendentalists who just take pleasure in Atma. So even Lord Krishna is sometimes referred to as Atmaram because he is not dependent on anyone, he is fully satisfied in himself. A person who is fully self-sufficient, self-satisfied and is rejoicing within his Atma, right, within himself. Ram is rejoicing, pleasuring, deriving pleasure. So ऐसे जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे हैं, आध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं, आत्माराम होते हैं, जो खुद ही फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, वो भगवान कृष्ण का द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की डिवोशनल सर्विस में लीन होते हैं. और ये क्वालिटी भगवान की है कि वो आत्मारामों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. इसका बहुत ही स्वीट एग्जाम्पल है 4th कैंटो में कि जो चतुर्कुमारस थे, उनको इंक्वायरी थी तो उन्होंने स्मेल किया, उनको एकदम से अट्रैक्ट हुए वैकुंठ की तरफ. वो वैकुंठ में गए. 6 डोर क्रॉस करने के बाद 7 डोर पे जय विजय ने रोका, right? It was because Lord also desired them not to enter. अगर 7th से enter कर जाते, they would not, because they were not qualified enough. At that time, वो ज्ञान योगी थे. ज्ञान योगी का मतलब क्या होता है कि वो सोचते थे ब्राह्मण सब कुछ है. जब उन्होंने पद्मनाभ विष्णु को देखा और उन्होंने भगवान के अंगों का स्पर्श किया, when they touched his lotus feet, his hands, his body, they were attracted by him so much, and then they realized that actually Bhagwan iti shabd थे. So Bhagwan जो है, the beautiful form of Lord Krishna, he is the supreme personality of Godhead. Lord Vishnu is Vishnu Tattva Samsha, right? Simultaneous one and different. The activities are different, but simultaneously one. So all Vishnu Tattvas, when you refer to all of them are more than one in number, you still call them together as the supreme personality of Godhead. But Lord Krishna is the Avatari. All other are avatars, right? So Avatari, Lord Krishna is also referred to as the original supreme personality of Godhead. He is the original Avatari, जिनसे सारे अवतार हुए हैं. So ऐसे में ये रिवील करते हैं सुत गोस्वामी टू द sages at Naimisharanya, उनको बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, even though he is Atmaram, even though वो अपने आप में fully satisfied है, even though he is a self-realized soul, तब भी वो भगवान के नेम फेम ग्लोरीज में रैलिश करते हैं. तुष्यंती चा रमंती चा. और उन्होंने इस भागवतम को प्रॉपरली स्टडी किया. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग को स्टोरी की तरह नहीं समझना चाहिए, इसको हमें सिंसियरली स्टडी करना चाहिए. इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेसन्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि भगवान, गॉड इज़ ग्रेट, यस, बट हाउ ग्रेट ही इज़ वी कम टू नो, एंड हाउ मर्सीफुल भगवान है, कितने प्रेम से हम लोगों को पालते हैं और हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. बस येट एट द सेम टाइम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अगर खुश रहना चाहते हैं, वो सिर्फ हमको खुश देखना चाहते हैं. और हमको बार बार बताते भी हैं कि हमारी खुशी किसमें है, इन एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वो हमारा ट्रू नेचर है, राइट. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वी शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस एंड टेक टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तभी हम लोग प्रॉपरली अपने आप को एक्टिविटी में प्रॉपरली अपने आप को राइट चॉइसेस ले पाएंगे. सो आज हमने 11th और 12th क्वेश्चन जो फर्स्ट कैंटो के इस चैप्टर में आते हैं वो डिस्कस किए. पहले तो जब देवर्षि नारद व्यासदेव के आश्रम से गए तो व्यासदेव जी ने क्या किया. नाउ देयर इज वन क्विक पॉइंट आई वांट टू कवर अबाउट आश्रम, एंड देन द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट अगर सुखदेव गोस्वामी पहले से ही रियलाइज थे तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का स्टडी क्यों किया. सो दीज टू क्वेश्चंस वर आंसर्ड इन दिस चैप्टर. Now one important aspect is about ashram, right? So it is the Sanatan Dharma में वर्णाश्रम है. चतुर्वर्ण मया शिष्टम गुणा कर्म विभागश्च. लॉर्ड कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण है ये मेरे
द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए। मोड ऑफ गुडनेस में है ब्राह्मण, मोड ऑफ पैशन में है क्षत्रिय, मिक्स मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस में है वैश्य, द मर्केंटाइल मैन, एंड देन शूद्रस आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. सो Brahmanas are the philosophers, the scholars, the Vedic ज्ञाता वगैरह होते हैं जो ब्राह्मण को रियलाइज करते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं. That's why in the mode of goodness. And Kshatriyas are the administrators, the rulers, the kings. And then Vaishyas are the mercantile men. And then Shudras are the labor and people who service others. Now in reality, in today's time, Srila Prabhupada reveals कि लोग इन पोजिशन को ले लेते हैं, but that does not make them Kshatriya, Vaishya, Shudra or Brahman. They have to still qualify themselves. और जो पहली तीन जो हैं वर्ण, Brahman, Kshatriya and Vaishya, they have to be twice born. Shudra don't go through the reformatory process, they just serve one of the other three categories, right? And they can serve multiple ones as well, just a labor होते हैं. They could be serving a king as well as a landlord as well as a merchant. So different kind of services and labor होता है, उसके हिसाब से work करते हैं. So again proper perspective में हमें देखना चाहिए and संस्कार के importance देखना चाहिए. Ashram means a shelter, right? So even व्यासदेव का जो आश्रम था at the western bank of Saraswati था at Shamya Prash, and it has a significance that this is where Vedas were revealed. So जो उसको आश्रम क्यों बोला गया? Because Vyasdev, even though he was a grahastha, he was in grahastha ashram, right? Sannyas is an ashram, so sannyasis live in a sannyas ashram, right? So that's the ashram, that's the shelter. But interestingly, grahastha has a grahini, the wife, husband and wife. When a person goes into grahastha ashram, he has a wife. Grahini means the owner of the house. Grahastha is who's situated in the house. That is an important aspect people don't pay attention. के गृहस्थ आश्रम में जो wife होती है वो owner होती है. She owns all the property. That's why she is also referred to as Lakshmi, because she is the one who owns all the property. Husband is only staying there to give her protection and taking care of the property, maintaining on her behalf. So आज के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस वगैरह होते हैं और बहुत ज़्यादा फाइट होती है, if the husband is trying to take away from the property, in reality ये जो है ना सनातन धर्म के हिसाब से नहीं, because husband would just walk out सनातन धर्म के हिसाब से. And then another aspect is that there was no divorce in Sanatan Dharma, right? इसमें वर्णाश्रम system में there was never a divorce. This is a concoction, strategy developed in the Western world. And this happens because people, they don't follow the proper rituals, they don't understand the spirituality. So rituals are important when you understand the spirit behind them, the essence behind them, the meaning behind them. जब उनको समझते हैं कि क्यों ये ritual है, तब वो spiritualize हो जाते हैं, because all rituals are meant to satisfy Lord Shri Krishna, right? हरे कृष्ण. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. भगवान कृष्ण कहते हैं पीस फॉर्मूला 5.29 वर्स ऑफ भगवद गीता में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल sacrifices. So all rituals are referred to as some level of sacrifices, right? And so these sacrifices are to be done to satisfy भगवान कृष्ण. भगवान कृष्ण को satisfy करने के लिए सारे rituals होते हैं. Only then they can be spiritual. Otherwise they are just mental concoction. और नियमाग्रह जो प्रिंसिपल है जो हमारी भक्ति को डिस्ट्रॉय करती है, उसमें एक है, some people are very much attached to the rituals, is नियम आग्रह. आग्रह is attachment to the ritual just for the sake of doing it. You should understand why you're doing something, right? That's intelligence. Don't be in ignorance. We have responsibility. We have been given intelligence. That's the ability. उसको use करना चाहिए. और नियम आग्रह is ignorance of rituals. कि अगर हम समझ नहीं आता तो हम नहीं करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि उसका मतलब तो ये हुआ कि you are ignoring rituals and that's why you are concocting different systems. और ये जो mental speculation is where people don't follow जो धर्म विधान है जो शास्त्रों में दिया हुआ है उससे, और जो mode of ignorance है उससे influence होकर जो choice करते हैं, अपना mental concoction करते हैं, it's only going to cause havoc, right? Demonic traits हैं actually, and this pandemic जो spread हुआ है, this is also because of demonic traits coming from animal meat eating and so forth. And this was not even in the Varnashram Dharma, there was no meat eating.
तो हमें समझना चाहिए इसको, जैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे परीक्षित महाराज के रूलिंग के समय कैसे जब कली होता है एंड किस तरह से अगेन इट्स बीन आइडेंटिफाइड कि मीट ईटिंग इज नॉट अ प्लेस टू बी एट and one should give it up as soon as possible. And how do you give it up? Take to the chanting of the holy name. That will help. Purify yourself early morning, start chanting, and you will pray to Lord Shri Krishna. Hare Krishna. Yes. Do we have any question? Yes. So class over. Yes. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Kori Vaishnavind ki jai. So this is where the chapter ends. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So Renu Sharma Mataji has a question. Hare Krishna. Renu Sharma Mataji asks, Hare Yes. Krishna Prabhu ji, Danvat Pranam. Hare Krishna. आज Dhanvats. के context में what should a woman do Yes. if she is single mother of a girl child? Can't she raise her daughter on her own without dependence on her father or brother? Because they themselves are having their own family commitments, so dependence on them is perceived as increasing burden on them. Oh. Can't she go ahead and lead her life in Krishna conscious manner without dependence on her father or brother or any of the male counterpart? I think क्योंकि आपने Yes. बताया कि women को protection में रहना Right. चाहिए और क्योंकि आजकल women are into careers, they are Yes. working independent mothers. Yes. So माता जी का क्वेश्चन है कि Yes. you know What to किस do? तरह की अप्रोच रखनी चाहिए for a Right. Krishna conscious life. See again, this is where you are put in this situation, Mataji. So you have been put in this situation because of the circumstances. आपके brother, आपके जो father, आपके जो male members of your family, जो पुरुष हैं आपके परिवार में, वो सोचते हैं ये burden है. No, it was a responsibility, a burden नहीं. ये सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्णाश्रम धर्म में मानते थे कि वीमेन आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन, तो वो प्रोटेक्ट करते थे. लेकिन आज के समाज में थिंग्स आर गोइंग इन द अदर डायरेक्शन. सो यस, इफ यू आर केपेबल देन यू शुड टेक केयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड मेक श्योर दैट योर डॉटर इज गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर गाइडेंस. yet at the same time pray for your father, your brothers also, ताकि उनका ये जागृत हो, उनका कॉन्शियसनेस, उनको समझ में आए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर, ब्रदर्स टू टेक केयर ऑफ सिस्टर एंड डॉटर्स एंड इवन डॉटर इन लॉज, ताकि अगर किसी का जैसे हस्बैंड नहीं रहता या हस्बैंड छोड़ के चले जाते तो उनको बाकी समाज में जो परिवार के पुरुष हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉपर गाइड करने की. येट एट द सेम टाइम यू आर ऑन द राइट पाथ and we'll pray for you and your daughter as well that you can continue to do your duties. What is important is आज के समय तो you are making the right choice given the circumstances. Context is very important. जैसे इस पे भी अर्जुन के सामने बड़ी टफ चॉइसेस आई. एक तरफ द्रौपदी, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल सब लोग बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दो, एंड देन भगवान कृष्ण और भीम बोल रहे हैं इसको मार दो, और वो दोनों को कैसे सेटिस्फाई करें. So he realizes that there is no injunction of killing the body. You just have to remove the property and remove the the sign of existence. जब उसके बाल काट देते हैं, उसकी शिखा काट देते हैं, that completely diminishes his existence. So इस तरह से हम लोग की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे टफ सिचुएशन आती हैं. आप जो ये बोल रही हैं कि एज अ सिंगल मदर you have to take care of your daughter. So this is a very tough situation and we we'll pray for you. We should all pray for her and please continue on your path because you are doing the right thing. You are making sure that your daughter gets the right upbringing and that you are in Krishna consciousness. Actually in Krishna consciousness mein to even should not even think of man, woman, right? That is also bodily designations hai. Krishna consciousness mein to jivera swarup hai Krishna Nityadas. We are all eternal living entities. So please engage in devotional service. Please continue to chant, and we should also chant on your behalf, praying for you and your daughter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That may Lord give you the strength. भगवान आपको सहनशीलता दे, आपको enough capabilities दे, so that you can continue to be on your wonderful path of Krishna consciousness while providing nice, nourishing upbringing for your daughter and yourself. Hare Krishna. Yes. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स आर स्टिल हरे कृष्णा. पर आज की क्लास अब एंड हो गई है. आज Yes. हमने
कैंटो 1 चैप्टर 7 कवर किया और प्रभु जी ने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया कृष्णा। हाउ वी कैन मेक राइट चॉइसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन द परफेक्ट कॉन्शियसनेस, so that we can live a life of bhakti and we can achieve perfection. हरे सुंदर कृष्णा। लाल जी ने ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा। हरे राकेश कृष्णा। टंडेल, राहुल तनवर, अशोक तनवर, सुषमा जायसवाल, राहुल शिवाय, ऋतु मोर, महंतेश, हरे कृष्णा, सोमन चक्रवर्ती, अमित तालुदकर, रवि कोवलेश्वर। प्रभु जी ने अभी भी रेणु शर्मा माता जी का क्वेश्चन आंसर किया था और मौसमी सन्याल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्वेता गुप्ता, अशोक कुमार, विशाल वर्मा, विकी कंबोज, कृष्ण पॉल, ओम प्रकाश, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, ब्रजेश कुमार शर्मा, सुदेश जोशी, हरे कृष्णा। कृष्णा रान भट्ट, नेहा मौर्य, हरे कृष्णा। पूरन दयाल, हरे जय कृष्णा। सीलन, मेनन, सुरजीत विश्वास, तपस बेरा, विनय दुबे। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। अमर सी भाई प्रजापति, अनुषा, हरे कृष्णा, सतीश गनीवड़ा, मीरा ठक्कर, निर्मल चंद्रा, शशि महावीर, नरेंद्र बुद्धा and Venkatesh Jagannathan. So many people have joined. So I just want to cover a very nice story that I recently heard, which is very much in line with this chapter. अर्जुन ने जिस तरह से द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को बांध के द्रौपदी के सामने सर्व किया, आज के जमाने में यही चीज़ कौन करते हैं? पुलिस करती है, राइट? दे प्रोवाइड दैट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. सो इट जस्ट सो हैपेंड दैट एक बार एक पोप थे, वो जा रहे थे वेटिकन सिटी से, तो अपने जब प्लेन के लिए जा रहे थे, वो 3 घंटे थे उनके पास. तो जो लिमोसिन में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यू नो व्हाट, मेरे पास काफ़ी टाइम है, अब इतना सारा टाइम बिताना है, तो बहुत समय हो गया मैंने लिमोसिन नहीं चलाई, मैंने कोई कार नहीं चलाई. सो कैन वी स्विच प्लेसेस सो दैट आई कैन ड्राइव द कार? ड्राइवर सर व्हाई नॉट. सो ड्राइवर को पीछे बैठा दिए जहाँ बैठे हुए थे लिमोसिन में, और खुद ड्राइव कर रहे थे. अब वो जो थे रस्टी थे, यानी काफ़ी समय से जब ड्राइव नहीं करी है, तो जब सडनली आप कोई चीज़ बहुत समय बात करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ करते हैं, राइट? यू मेक मिस्टेक्स. तो ऐसे ही जब उन्होंने मिस्टेक्स वगैरह करी, तो सडनली ही हर्ड पुलिस सायरन बिहाइंड हिम. सो उन्होंने कर्ब पे ले जाके अपनी कार को रोक दिया. तो वहाँ से पुलिस की गाड़ी जिसने उनको सायरन से रोका था, पुलिसमैन आया, वापस आया, उसने कहा मूव योर विंडो डाउन, अपनी विंडो को नीचे करिए. तो उन्होंने अपने विंडो का ग्लास को नीचे किया, तो उसने देखा, बोलता 1 मिनट जरा रुकिए. फिर पुलिसमैन अपने पास वापस गया, अपने कार के पास. उसने अपना स्पीकर से अपने सुपरवाइज़र को कांटेक्ट किया. बोलते हैं एक्चुअली आई जस्ट स्टॉप, ये जो कार थी एक जा रही थी, ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर रहे थे, तो मैं बहुत असमंजस में पड़ गया हूँ. आई एम वेरी डिस्टर्ब. आई स्टॉप दिस पर्सन and I think this is someone big. So the person on the other side, his boss says, जो उनके जो कमिश्नर वगैरह जो भी थे उनकी तरफ से, उनके जो ऑफिसर थे, वो बोलते हैं किसने, तुमने किसी मिनिस्टर को देख लिया क्या? बोलते हैं नो इवन बिगर. बोलते कोई डेलीगेट था क्या बाहर की कंट्री से? बोलते नो इवन बिगर. बोलते हैं क्या वो प्रेसिडेंट था? बोलते नहीं प्रेसिडेंट नहीं, इवन बिगर. प्राइम मिनिस्टर था? नहीं, यू नो कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट था क्या? बोलते हैं नहीं इवन बिगर. तो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन इवन बिगर? बोलते हैं एक्चुअली उनका जो ड्राइवर है वो पोप है. सो यू कैन इमेजिन दैट इवन दैट प्योरिटी इन हिज हार्ट, ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इज ही डूइंग द राइट थिंग, राइट? सो अगेन दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, लाइक सम there is goodness in everyone's heart, and people, they want to seek help from authority. So though important lesson, even though it's a joke and it makes us laugh, that what this policeman is thinking is riding as the passenger of this car, but it also helps us realize the good quality in that policeman, that he did not directly attack or give instructions. He first seek to understand before being understood. ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं ये जो सिचुएशन में हूँ, let me approach the higher authority. So mental concoction नहीं किया उसने. That is very important, and he is approaching the higher authority. अर्जुन ने भी ऐसे ही हायर अथॉरिटी, जब वो बिविल्डर हुआ, भगवद गीता में जैसे बताया है, कुरुक्षेत्र में अपने पितामह भीष्म पितामह को देख के, द्रोणाचार्य को देख के, तो वो ऐसे ही छोड़ के नहीं चला गया. ही प्लेस दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड द पोजिशन चेंज फ्रॉम फ्रेंड एंड कजिन टू स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल. शिष्यस्तेहम
Swami Pam Prapanam. So again he took shelter of Lord Shri Krishna. तो इसी तरह से हम लोगों को भी हायर अथॉरिटीज, दूसरे डिवोटीज से हेल्प लेना चाहिए. डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन वी आर stuck to, when हमको right choice नहीं मिल रही है, we should take to the chanting of the holy name also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला भगवत्पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.